class 10th. Welcome in Balakrishna Educational Academy. Today we will discuss about exercise 3.5 cross multiplication method. Cross multiplication method means the in Hindi version वज्र गुणन विधि यानी आड़ा गुणा ये हमने करना है। तो पहले समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास में क्या है। Let us suppose that we have the two pair of linear equations. These are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now if we compare the coefficient of x, y and constant term, these are the coefficient of x is a1, a2 and the coefficient of y is b1, b2 and the constant term is c1, c2. So now we can rewrite as in the form of here be x, y and here be 1. Now put the coefficient of y, this is b1, b2 and here be c1, c2 and a1, a2 and last b1, b2. We can write as in the form. Now the first part is x, put the value of x upon now the cross multiplication for here b1 to c2 and b2 to c1. Then we can write as x upon b1 c2 minus b2 c1. ये हमारे पास में हो गया equal to now the value of y upon if we cross multiple of these two terms, that is c1 a2 minus c2 a1. So we can write as here c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon the complete cycle is in this way, 1 upon a1 b2 minus a2 b1. So we can write here a1 b2 minus a2 b1. To find out the value of x and y, we substitute this one x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 and again y upon c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Now we can rewrite is here x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 and again y upon c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Now cross multiple this one from b1 c2 minus b2 c1 to 1. So therefore we can say that the value of x equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. This is the value of x and y equal to in the same way multiple c1 a2 minus c2 a1 as 1. So here we can write as a1 c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1. This is the value of y. As we know that the denominator part should not be equal to 0, then we can say that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. The first case first हम यहाँ पे ले लेते हैं कि if a1 b2 minus b2 a1 a2 b1 is not equal to
0. A1 B2 minus A2 B1 is not equal to 0. Therefore, A1 B2 is not equal to A2 B1. Transpose this one from left hand side to right hand side. Now we can write here again where A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. In this case, we can say that the given linear pair of linear equation has a unique solution. In this case में क्या होगा कि a unique solution आपके पास में. ओके, एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास में रैखिक समीकरणों के युग्म आपको दे रखे हैं उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि अद्वितीय हल है, कौन सी इक्वेशंस ऐसी हैं जिनका कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, और कौन सी इक्वेशंस ऐसी आपके पास में है दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि किसके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं. इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी केस में अद्वितीय हल है, किसी भी समीकरण युग्म का अगर अद्वितीय हल है तो फाइंड इट, उसे खोजिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि द्वारा उन मेथड्स को उनका सॉल्यूशन आपने निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. First, we compare these two equations in general pair of linear equation. These one a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then we have a1 equal to, that is 1, and a2 equal to, this is 3. Now coefficient of y, that is b1 equal to minus 3 and b2 equal to minus 9, and constant term c1 equal to minus 3 and c2 equal to minus 2. Now find out the ratio of these coefficients. a1 over a2, a1 over a2 equal to 1 over 3 and b1 over b2, b1 over b2 equal to minus 3 over minus 9. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास में, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड द कांस्टेंट टर्म रेशियो c1 ओवर c2 इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो देन वी कैन राइट एज 3 ओवर 2. नाउ सी द वैल्यू ऑफ दीज रेशियोज, a1 over a2 equal to b1 over b2, because the value of a1 over a2 equal to 1 by 3 as well as b1 over b2 equal to 1 by 3, but not equal to c1 over c2, यानी c1 over c2 की वैल्यू आपके पास में 3 by 2 है जो कि 1 by 3 के इक्वल में नहीं है. Then we can say that in this case a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. Then we can say that the given pair of linear equation has नो सॉल्यूशन, यहां पे इसके कोई भी हल नहीं होंगे. तो हम लिख सकते हैं therefore the given pair of linear equation has no solution. ये आपके पास में. Okay, the second part of this question is 2x plus y equal to 5 and 3x minus 3x plus 2y equal to 8. First of all, we have to write this one be in this case 2x plus y minus 5 equal to 0 and this one be 3x plus 2y
minus 8 equal to 0. Now if we compare the general pair of linear equations, that is a1x plus b1y plus c2 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a1 equal to 2 and a2 equal to 3, b1 equal to 1, b2 equal to 2 and c1 equal to minus 5 and c2 equal to minus 8. If we compare the ratios, a1 over a2 equal to 2 by 3 and b1 over b2 equal to 1 by 2. In these two ratios, we can say that a1 over a2 is not equal to b1 over b2. Therefore, the given pair of linear equations has a unique solution. तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. Therefore, the given equations have unique solution. ये हमारे पास में होगा. अब यूनिक सॉल्यूशन है तो तब हमने इसको हल करना है किससे, अकॉर्डिंग टू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x, y and 1 and the coefficient of y first, that is 1 and 2, b1 और b2. फिर c1 and c2 minus 5 minus 8. फिर उसके बाद आपके पास में क्या है, a1 a2 that is 2 and 3. फिर b1 b2 that is 1 and 2. तो we can write as x upon, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, x अपॉन क्या क्रॉस मल्टीपल किया हमने, 1 से माइनस 8 को मल्टीपल किया तो माइनस 8 माइनस 2 से हमने 5 को मल्टीपल किया तो 2 5 10 और माइनस साइन है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 हम इस तरीके से लिख लें पहले, इक्वल टू y अपॉन, यहाँ हम चले इस तरीके से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल किया तो माइनस 15 आपके पास में हो गया, 5 3 जा 15 एंड माइनस 8 से 2 को आपने मल्टीपल किया तो माइनस 16 आपके पास आ गया, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ आपके पास में ये चला तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3. तो अब हमारे पास में क्या आया, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं x अपॉन, यहाँ पे माइनस 8 और क्या हो जाएगा, और माइनस ये प्लस साइन दे देगा तो माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 1. क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल किया हमने तो क्या हो गया, x से 1 को मल्टीपल किया तो x और 1 से हमने माइनस 8 प्लस 10 को मल्टीपल किया तो माइनस 8 प्लस 10 आपके पास में आ गया. चाहे तो इसको यही हल कर लीजिए आप, तो x इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, 2. तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू, x इक्वल टू 2 आ गई यहाँ पे वैल्यू. अब y का देखिएगा, y अपॉन माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 16 इक्वल टू, ये हमको क्या दे रहा है, 1 अपॉन 4 माइनस 3, इसमें 1 दिया हमको तो क्रॉस मल्टीपल करें या पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो y अपॉन, यहाँ पे माइनस के 15 है और प्लस का 16 है तो प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1. तो क्रॉस मल्टीपल किया यहाँ पे तो y इंटू 1 y, 1 1 जा 1. तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1. अगर इसे हम आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास में x की वैल्यू 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू 1 आनी चाहिए. और अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करूं तो वहां पे भी मेरे पास में यही वैल्यूज आनी चाहिए. Okay, now the third part of this question, 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40 हमारे पास में है. इसको मैं ये करता हूं कि राइट हैंड साइड को 0 बना देता हूं सबसे पहले. तो 0 बनाने के लिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 3x minus 5y
-20 इक्वल टू 0 और ये वाली को लिख सकता हूं मैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में बन गया। अब मैंने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है जो मेरे पास में व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है और जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू हमारे पास में 3 हो गया और यहाँ पे चलें तो b1 इक्वल टू हमारे पास में -5 हो गया और यहाँ चलें तो c1 इक्वल टू हमारे पास में -20 हो गया। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो a2 इक्वल टू मेरे पास में 6 हो गया, b2 इक्वल टू मेरे पास में -10 हो गया और c2 इक्वल टू मेरे पास में -40 हो गया। नाउ अब इनके हमने क्या करने हैं, जो रेशियोज हैं, जो कोफिशिएंट है उनका रेशियोज हमने देखना है a1 ओवर a2। तो a1 ओवर a2 मेरे पास में 3/6, इसको मैंने जब हल किया तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1/2 हमारे पास में आया। फिर उसके बाद मैंने b1 ओवर b2 देखा तो b1 ओवर b2 इक्वल टू -5 ओवर -10, -5 ओवर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये हमारे पास में आया। और जब मैंने c1 ओवर c2 देखा तो c1 ओवर c2 में -20 ओवर -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 21 जा 20 एंड 22 जा 40। तो ये मेरे पास में वैल्यूज आ गई 1/2, 1/2 और 1/2। तो देयरफॉर a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। So in this case, if all the ratios a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2, अगर ये सभी ratios आपस में बराबर हैं, then we can say that the given pair of linear equations has infinitely many solutions. तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, therefore the given pair of linear equation has infinitely many solutions। ये हमारे पास में इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 हमारे पास में है। तो हम जो जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके साथ में इसकी कंपेयर करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास में a1 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू हमारे पास में हो गया -7। दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास में a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा -3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में -15। इनके रेशियोज को देखेगा, a1 ओवर a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर 3 और b1 ओवर b2 हमने देखा तो b1 ओवर b2 हमारे पास में क्या हो गया -3 ओवर 3। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 1, -3 से -3 कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो देयरफॉर वी कैन से दैट a1 ओवर a2 is not equal to b1 over b2. In this case, the given pair of linear equation has a unique solution. ऐसी स्थिति में जब a1 over a2 is not equal to b1 over b2 हो तो हमारे पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका एक अद्वितीय हल होगा। Therefore, the given equations has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास में क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे x, y और 1 ये ले लेते हैं। x को सेंटर पे रख के हमने b1, b2 और c1, c2 के बीच में रखना है। तो b1, b2 हमारे पास में क्या है -3, c1, c2 हमारे पास में क्या है -7, -15। फिर a1, a2 हमारे पास में क्या है 1 और 3
और फिर B1 B2 हमारे पास में हो गए -3 अब हमने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x अपॉन x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीपल करना है हमने। ये सर्कल हम ले लेते हैं, इस सर्कल में हमने 3 को -15 से मल्टीपल करना है और इस -3 को -7 से मल्टीपल करना है। तो पहले देखिए माइनस से माइनस को मल्टीपल किया तो प्लस हमारे पास में हो गया और 15 3 हमारे पास में हो गया 45 माइनस। अब उसके बाद हमने माइनस से इस माइनस को मल्टीपल किया तो हमारे पास में हो गया प्लस और 7 3 21, ये हमारे पास में आ गया इक्वल टू y अपॉन अब हमने ये वैल्यू को देखना है। फिर से यहाँ ये सर्कल देखा, इस सर्कल में देखा तो -7 से 3 को मल्टीपल करेंगे और -15 से 1 को मल्टीपल करेंगे। तो माइनस से इसका प्लस साइन मल्टीपल हुआ तो माइनस हो गया, तो -21 हमको मिल गया यहाँ से माइनस। फिर माइनस से यहाँ प्लस को मल्टीपल किया तो माइनस और 15 1 जा 15 तो -15 हमारे पास में यहां से हो गया इक्वल टू 1 अपॉन। अब हमारे पास में ये थर्ड सर्कल में हमारे पास में ये आया और इसमें हमने देखना है 1 से -3 को मल्टीपल करेंगे और 3 से -3 को मल्टीपल करेंगे। तो यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन -3 माइनस और 3 से -3 को मल्टीपल किया तो -9, ये हमारे पास में आ गया। तो पहले वाले को इक्वेट करेंगे थर्ड वाले के साथ में, यानी कि x अपॉन 45 - 21 दैट इज 24, ये हमारे पास में हो गया इक्वल टू 1 अपॉन -3 और माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीपल हुए तो +9, x ओवर 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6। यहां से 24 से उधर मल्टीपल कर दिया तो x इक्वल टू 24 ओवर 6 और 6 4 जा 24, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। इसी तरीके से y का ले लेंगे, y अपॉन -21 प्लस 15 इक्वल टू 1 ओवर, ये वैल्यू हमको क्या दे रही है 6, 1 अपॉन 6। तो y अपॉन यहाँ पे हमारे पास माइनस की क्वांटिटी है, कितनी ज्यादा है 6 ज्यादा है, अपॉन 1 ओवर 6 और y इक्वल टू -6 उधर मल्टीपल कर दिया तो -6 ओवर 6 और दैट इज -1। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 1। तो यहाँ हमारे पास में x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 आ गया। थैंक यू।